क्या है and what's the difference between rheumatology and orthopedics. तो थोड़ी सी इस बारे में मैं I'll try and explain and I'll touch briefly about certain aspects और आप लोगों की थोड़ी problems and let's आप लोगों की जितनी भी issues हों please just ask me out. Okay, fine. So I'll start. Doctor, good evening. This is Rupa Sharma from Delhi. Yes, ma'am. I was diagnosed with this problem last year. Yes, ma'am. Where my anti-nuclear antibody test was 17.85. Ma'am. So it should be less than 80, less than 20, they say. But Right. my RF factor was 83.6. So I have been put on now Folitrax, then HCQS. Yes, ma'am. And of course, Macweston and Folly here. Yep. So I have thyroid also. Yep. And I was given injection in my knee, right knee. There was a problem where I just could not walk. So in September, they took out a fluid and they had given an injection, which was, they said, is steroid, of course. Yep. So I do not know the name because it was a mix of some medicines. Mm-hmm. So now one thing I wanted to know is this a reversible process or will it affect further, and anything precaution or any dietary change that you would suggest? Ma'am, by the time I finish this talk, probably all your questions would be answered. Okay. But yes, I'll tell you in brief. Ma'am, depends on certain other aspects, whether this disease is curable, means whether the disease will go or not. That depends on certain of your more tests. And there's something known as NT-CCP that can be decided factor later on. And the treatment part, as of now, the broadly whatever you told me is all good. The treatment continues for a good amount of time. Diet, there are certain things which you'll come to know, understand after this talk, that what changes necessary should be done. Okay. And other than you should remain active. The most important thing is you should remain active. You should not think that you are suffering from such a big disease. You definitely have a disease, but yes, you need to work on your disease. So this C-reactive protein test, CRP serum was 8.3. Yeah, that's my inflammatory marker. It's Okay. basically a disease of inflammation. Okay. Okay. So what do you suggest to me for this? Like, do you think this is going to remain lifelong and I'll be on medicines lifelong, or is it? But there are certain more factors which determine that whether you will take that, whether you will have to take the certain meds for more amount of time or not, for lifelong also. But minimum course of disease for duration would be around 2 years. You need to take for 2 years. For 2 years. Okay. That is minimum. That's the minimum, right? Right. Because as of today, it's been almost a year, and I started with Folitrax as with 25, then came to 20, then 15, 12.5. Now he's reduced it to 10. So that, your probably disease would be under active. It won't be active, sorry. So therefore, yes, the dose reduction has been done, and probably it will go on for a certain amount of while. But yes, minimum 2 years you should take the medicines. Okay. Okay. So because I was told it is not a reversible process, like. That's what. Ma'am, please hear to my presentation and then we'll talk. Right. Right. I request all the participants. I'm muting everybody. We'll have question answer session at the end of the day, at the end of the session. Just give me a moment, Gaurav. I'm muting everybody and then I'll unmute you. Now, Gaurav, you unmute yourself and you can start. Fine. Thank you so much. So, rheumatology. Just hold on. Yeah. This is the place where I work. Rheumatology is a branch of medicine devoted to diagnosis and treatment of rheumatic diseases. So what is rheumatic diseases? It's also known as immune mediated diseases. What is immune system? It's basically, immune system is a defense mechanism of our body. What does this? It's also known as, currently the term rheumatology has not been abolished, but it has been changed to clinical immunology. It's also known as a branch, which is either you will call a person as immunologist or a clinical immunologist or a rheumatologist, a person who practices this medicine. Fine. So immune mediated disorders, as I have broadly classified, it is musculoskeletal, MSK, soft tissue, CTDs, connective tissue disorders, and autoimmune. So I'll broadly explain what is all about. So musculoskeletal. Musculoskeletal means the muscle and the skeleton. So any disease which is related to your muscles
or skeletal system. Skeletal system consists of bones, joints, cartilage, tendons, ligaments. So any disease which is importantly associated with this musculoskeletal system is a part of rheumatology. Soft tissue system. Connective tissue disease or an autoimmune disease. See, autoimmune means any disease which fiddles with our immune system. Immune system means a body defense mechanism. If we catch hold of an infection, say it as a common cold, our body fights it out. It's an innate mechanism of our body that will fight out an infection. Whatever the infection might be, strong, less, small, hard, severe, whatever you may call it as. Immune system is the one that takes care of this. Once your immune system recognizes this foreign material, it acts against it. If something happens to this immune system and it recognizes yourself as foreign, it creates an infection or mechanism which is against your own body. That is autoimmune disease. That is, there are various kinds of these. Rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis is one such disease. Systemic lupus erythematosus or SLE is another one. Sjogren's disease, dermatomyositis, there are n number of diseases like this. It's broadly classified as autoimmune disease. So the diseases of immunology with a soft tissue and a musculoskeletal system is what is rheumatology is all about, broadly classifying. The main and the important symptom for which a patient comes to a doctor is presently an arthritis. What is arthritis? There is a difference between arthritis and arthralgia. See, patient will not understand arthritis hai. वो कहेगा जी मेरे जोड़ों में दर्द है. So जोड़ों में दर्द can be anything. It can be so many things. But when to see a rheumatologist is when there is an inflammation of joint. Inflammation का मतलब there should be pain, there should be swelling, there should be stiffness. अगर आपके डिजीज आपके जॉइंट में किसी भी जॉइंट में, बड़े जॉइंट, छोटे जॉइंट, बड़ा जॉइंट मतलब शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, स्मॉल जॉइंट मींस आपके हाथों के जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, तो अगर आपके इन जॉइंट्स में पेन है एंड दैट पेन ड्यूरेशन इज मोर देन 1 month, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस मींस दबाने से दर्द होना, स्टिफनेस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस. अर्थराइटिस को हिंदी में हम बोलते हैं गठिया. तो गठिया इसीलिए बोला जाता है. So as you can see, ये जो joints, these are the small joints of the hand which are swollen. So this is arthritis. Arthritis, this is you can see my pointer. ये जो cartilage है, this is a part of the joint. Inside this knee joint, this is a cartilage which is a covering of the joint, which protects the joint. Now this joint is becoming inflamed. इसमें दिक्कत हो गई कुछ, whatever the reason might be. So this में swelling आएगी, pain आएगा. This is what is गठिया is all about. हम broadly इसको दो में classify करते हैं, inflammatory and non-inflammatory causes. Inflammatory मतलब जो मैंने आपको बताया, जैसे rheumatoid हो गया, SLE हो गया, multiple causes. Non-inflammatory is the thing जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं. The most common being osteoarthritis. So osteoarthritis is different from rheumatoid arthritis. Rheumatoid is known as गठिया. Osteoarthritis is just an arthritis, disease of the joint. The other common, it can be because of various reasons. सबसे commonly overweight, diabetes, leprosy, sedentary lifestyle, ये सब चीजें, age is also one of the risk factors for osteoarthritis. It's not necessarily हर एक को होगा, but yes, it's also one of the reasons. The most common is osteoarthritis. I'll deal with it. So next comes inflammatory, जो मैं आपको बता रहा था. Inflammatory is rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, gout, pseudo gout, psoriatic arthritis. Psoriatic arthritis is one which is related to psoriasis. Psoriasis के बाद it can develop into psoriatic arthritis, which is an inflammatory kind of an arthritis. So now you can see here, this is the healthy knee joint. The brown part, ये जो brown वाला दिख रहा है, this is a bone. जो white दिख रहा है, that's a cartilage. So cartilage is a covering on the joint, जो इस joint को cushion की तरह maintain करती है. ये जो बीच का हिस्सा है, ये यहाँ पे ये cushion जैसा जो लगता है, this is what this protects this joint. And there is synovial fluid inside this joint, which protects this joint, lubricates this joint. So as the disease advances, this is a healthy knee joint as compared to what आप ये देख सकते हैं, which is osteoarthritis. What happens to the disease? Ultimately, this cartilage is destroyed. Cartilage destroy होके हम commonly बोलते हैं, या patients commonly आके बोलेंगे जी हमारे joint की जो बीच में gap है, gap आ गया है. Actually gap आता नहीं है, gap खत्म हो जाता है. Because this cartilage gets destroyed.
On an X-ray, you cannot see a cartilage. आपको जो दिखता है that's only the gap. So ये cartilage जो है ये खराब होनी शुरू होती है. This cartilage gets destroyed, and once this cartilage gets destroyed, the cushioning capacity of the knee joint goes. Gradually and gradually, this will worsen it out, and ultimately the bone gets resolved. ये ultimately bone खराब कर देती है. So this is the destruction of the bone. Osteoarthritis. Osteoarthritis cannot. It's not only that it happens in the knee. ये हाथों में भी हो सकता है. ये आप देख रहे हैं ये swelling है छोटी सी यहाँ पे. ये जो swelling आपको दिख रही है, this is also the destruction of the small joints of the hand. But this does not occur in the initial stages. This happens over a period of time. कई बार हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, आप उनके हाथों को देखेंगे, वक्त के साथ ये हर एक के साथ होना है, किसी के साथ थोड़ा, किसी के साथ ज्यादा. So this is osteoarthritis of the hand. These are also known as Heberdin's nodes. That's of insignificance. But the point is कि ये जो disease है, this is different from गठिया. गठिया is different. Osteoarthritis is different. मैं आप लोगों को एक्सरे नहीं पढ़ाने वाला, बट जस्ट टू आपको समझाने के लिए ये एक एक्सरे देखिए. इसके बीच में ये जो आपको जगह दिख रही है, ये जो जगह होती है, दिस इज कार्टिलेज. ऊपर और नीचे की बीच की जगह खाली होती है. सिमिलरली ये दिस इज अ हेल्दी नी एक्सरे. बिल्कुल नॉर्मल है. ये एक जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है. ये नी जॉइंट है. नाउ लुक एट दिस एक्सरे. सी ये जो जॉइंट स्पेस है, ये जॉइंट स्पेस यहाँ पे जितनी है, एंड यू कैन सी दिस जॉइंट पे, द जॉइंट स्पेस इज गॉन. सो दिस इज व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ऑल अबाउट. ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गई, द जॉइंट अपोजेस इटसेल्फ, एक दूसरे के ऊपर आ गए. अब ऊपर आने की वजह से बीच की कार्टिलेज खत्म हो गई और कट 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 की आवाज आती है. आप लोगों की बेसिक जो भी मतलब लोगों की पेशेंट्स की कंप्लेंट्स यूजुअली होती है, जॉइंट कट कट ज्यादा बोलता है. दिस इज द इनिशियल साइन. सो और ये देखिए अभी बोन का टेक्सचर चेंज हो गया है. सो दिस इज व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. देयर आर फ्यू स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. एज यू कैन ब्रॉडली सी देयर आर 4 स्टेजेस. ये जो white है that's a cartilage, the brown is the bone. So this इसमें initially the only few say 10-15% of the cartilage is destroyed. Coming to the next stage, ये जो cartilage की destruction है ये ज्यादा हो जाती है और ये joint space तक चली जाती है. This is stage 2. Till the stage 1 and stage 2 disease, this disease can be stopped if you take adequate precautions, do adequate amount of exercise, necessary diet, necessary weight loss. This disease can be halted at this stage. Stage 3, the cartilage is destroyed and it reaches up to the bone. ये आप देख सकते हैं ये bone तक जा रहा है. Furthermore, joint space also destruction. And this is stage 3 and stage 4. Currently, people do advocate for knee transplant. But 3 में भी there are certain things आप knee transplant avoid कर सकते हैं. But for a good quality of life, actually it is necessary. But it's a patient's call. It's not totally 100% medically recommended. Can be sent. अगर if it's the big joint disease, आप हिल नहीं पा रहे हैं, definitely knee transplant के लिए जाना पड़ता है. Other than that, आप लोगों को for that matter, आप लोगों means any patients के लिए you have your own choice. If you want to get this done, you may not. But lifestyle changes, diet, exercise, the most important thing. Coming to inflammatory causes, rheumatoid arthritis. So this photograph first, please focus on this first photograph. This is initial stages of rheumatoid. You can see the swelling यहाँ पे. ये छोटे छोटे joints हैं हाथ के, ये सूजे हुए हैं. ये हाथ, ये वाला नकल पार्ट है, ये सूजा हुआ है. So initial part में ये swelling होती है. What happens is आप initially swelling होती है, बंदे को pain होता है, you take some pain killers, आपको relief हो जाता है. उसके बाद भी relief नहीं होता, you need to see a doctor. Because if not controlled, what happens is you progress to this stage. This is intermediate. The swelling is increased. ये swelling यहाँ पे बढ़ गई है. Joint subluxation. Subluxation means joint अपनी cavity से नीचे चला जाएगा, तो joint आपका खराब होना शुरू हो जाएगा, ये subluxate कर जाएगा. You can see this finger, ये finger bend हो गई है. Coming to इससे ज्यादा बढ़ गई, if not controlled properly, you lead to late RA. इसमें तो deformities हो गई, हाथ टेढ़ा हो गया. This ये 2 points में लोग usually कहते हैं जी गठिया की बीमारी हो गई, जोड़ों में गांठें पड़ने लग गई हैं. So this is the joint destruction. This joint is destroyed, subluxate हो गया, नीचे जा चुका है. ये नोड्स बन चुके हैं, ये उंगली मुड़ चुकी है. सो ये जो गठिया बोलते हैं, these are these गठिया वाले पार्ट. ये जो गठिया है, this is different from osteoarthritis. Osteoarthritis के जो नोड्स थे, they were totally different. So ये जो होता है, इसको हम गठिया बोलते हैं. Rheumatoid is a disease सिर्फ joint में नहीं रहने वाला है. It's a multi-system disease. Anything in rheumatology, for that matter, autoimmune, involves from top to bottom. It's a systemic disease. Top to bottom मतलब joints are the most common thing that is involved.
Other than that, it can involve various other system. System means cardiac, heart, brain, possible, GIT, पेट, liver, kidney, बहुत सारी involvements possible हैं. So इसलिए इस disease को treat करना जरूरी है. Skin में भी ऐसा हो सकता है. This is also a complication of rheumatoid. This is known as rheumatoid vasculitis. If disease is actively controlled, aggressively controlled, these stages do not come. पर ये आ जाती है. ठीक है. Coming to a second disease, ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis जिसने सुन लिया उसको लगता है डेथ सेंटेंस दे दिया किसी ने. It's a slowly progressive disease. क्योंकि पहली चीज आपको ankylosing spondylitis जिसके पास जाओगे, probably few doctors, maybe orthopedicians. I'm not blaming the orthopedicians. Majority of doctors, they'll tell you this is a irreversible disease. It's like a death sentence. It's a very slow progressive disease. You can see in the photograph, it evolves in a fashion of over a period of 36 years. What happens is the person develops, it's also known as kamar ka gathia. Hindi mein bolte hain kamar ka gathia. It starts in the spine, in the lower spine. From here, progressive upwards. So posture change shuru ho jayega. You start becoming crooked. Stiffness shuru ho jayegi. Back mein itni stiffness hoti hai, aap morning mein uth nahi paate hain. It takes around 30 minutes aapko walk karne mein dikkat hoti hai. You become so stiff. आपको लगता है it's not only in the early morning part. आप आफ्टरनून में भी बैठे हैं, मे बी आप काम कर रहे हैं, डेस्क जॉब है, आफ्टर 2 hours of sitting or 3 hours of sitting, you just stand up. थोड़ी बहुत स्टिफनेस इज नॉर्मल फॉर एनीबॉडी इफ यू डोंट डू एन एक्सरसाइज, बट इतनी स्टिफनेस होती है कि आपको उठ के चलने में ही पेन होता है. एंड दिस डिजीज प्रोग्रेसिव. आप देखिए, ही इज स्टैंडिंग एब्सोल्युटली इरेक्ट एंड नाउ दिस मैन इज क्रूकेड. सो just to illustrate, this is a normal X-ray of a spine. These are the vertebrae. This is the intervertebral column. This is the intervertebral disc. Nothing to see about. फर्क क्या है इन दोनों के बीच में? आपको गैप दिखाई दे रहा है और ये पॉइंट्स कितने शार्प हैं. Now see this. This is a X-ray of ankylosing spondylitis. ये आपको दिख रहा है, ये एक बैम्बू की तरह. This is known as bamboo spine. बांस होता है ना, बांस में जैसे गांठें होती हैं, ये ऐसे बन जाता है. The flexibility of the spine goes. You are unable to flex. आप crooked posture में आ जाते हैं. कुब निकल आती है, हिंदी में कहते हैं. So कुब is not only because of चोट की वजह से, it can be because of arthritis की वजह से. A small question. Can anyone identify the picture, the man in this picture? I guess everybody has read it. सबने पढ़ा है, अपने साइंस की बुक्स में देखा है. सर एक बार सबको अनम्यूट करेंगे प्लीज. Let me see. Yeah, one sec. I'm allowed anybody. Anybody please. Anybody can give me an answer. ये कौन है? Please give it a wild try. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Benjamin Franklin. Absolutely correct. Benjamin Franklin. Thank you so much. So Benjamin Franklin, King Henry VIII, Charles Darwin, Sir Isaac Newton. इन सब में क्या कॉमन था? कोई बात नहीं. I'll tell you. ये they suffered from diseases of the kings, known as gout. Gout को disease of the kings क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं because ये किंग्स की बहुत रिच डाइट होती थी, रिच इन प्यूरिन्स, प्रोटीन रिच डाइट होती थी. नॉर्मल बंदों को आसानी से प्रोटीन मिलता नहीं है, मांस मच्छी इतना खाते नहीं है. So they used to have good amount of fish. All these 4 people in the history, they had the disease of the kings that was known as gout. Gout क्या होता है? हिंदी में हम बोलते हैं यूरिक एसिड की बीमारी. So यूरिक एसिड की जो बीमारी होती है, that is known as gout. यूरिक एसिड में होता क्या है? यूरिक एसिड इज अ मेटाबोलाइट जो प्यूरिन का होता है, that is प्रोटीन का मेटाबोलाइट होता है. सो एक्सेसिव प्रोटीन जब बॉडी में हो जाता है एक लिमिट के ऊपर, उसका बाय प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड. दैट डिपॉजिट्स फर्स्ट जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है ये होता है. दिस इज द फर्स्ट एमटीपी, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, मतलब आपका ग्रेट टो का जो जॉइंट होता है. इतना लाल हो जाता है, जरूरी नहीं है इतना ही लाल हो, पर लाल हो जाता है. दर्द होता है, सूजन आती है. अगेन पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेटरी, आर्थराइटिस. सो यहाँ पे पेन हो रहा है, सबसे पहला ये जॉइंट इन्वॉल्व होता है. लेटर स्टेजेस में अगर ये यूरिक एसिड और बढ़ जाएगा, ये जॉइंट को खा जाएगा. द जॉइंट इज डैमेज्ड, बोन इरोजन्स हो जाती हैं, एंड द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, दैट इज नोन एज यूरेट क्रिस्टल्स, आर डिपॉजिटेड इन दिस जॉइंट. You can also see these urate crystals in the pinna. This is known as tophi. Tophaceous gout बोलते हैं. If uncontrolled, ये जो फिंगर्स की आप हालत देख रहे हैं, जॉइंट की हालत देख रहे हैं, ये डिजीज हो जाता है. सो यूरिक एसिड लेवल पे जितना फोकस किया जाता है, जरूरत से ज्यादा किया जाता है. If value is not more than 7.5, should not be treated. बाकी चीजें मैं आगे बताऊंगा.
In a normal X-ray, this is, you see this point, this is the first joint जो मैं आपको कह रहा था. Normal, see the joint is gone. This is all because of not treating it properly or not treating at all. The most important part for today's talk would be, I would suggest, आप इस पे focus कीजिए. This is a diet, particularly for gout, but this holds true for majority of any arthritis-like problems, rheumatoid-like problems. So, एक जो wrong concept है हम सब लोगों में कि दालें बंद कर दो, प्रोटीन बंद कर दो, that's wrong. कोई दालें बंद करने की जरूरत नहीं है. You need to take vegetables in abundance. Any kinds of legumes, vegetarian products are more welcome. आप खाएं, कोई दिक्कत नहीं है. The thing that is to be looked here for is red meat. Red meat is strict no for any kind of arthritis. High fat diet, actually high fat diet में भी butter बहुत ज़्यादा लेना causes a problem. So it must be used very sparingly. If possible, do not use sweetened sodas. ये चीज बहुत ज़्यादा खराब करती है. Please do not take sweetened sodas. Alcohol in moderation. It is advocated. Alcohol आप ले सकते हैं unless it is contraindicated, means आपका liver में problem है or there are certain other risk factors जिसके लिए आपको alcohol मना की जाती है. You should not take an alcohol. Otherwise, alcohol in moderation can be taken. Wine is neutral for cases of gout. Even whiskey can be taken, but in a 60 ml per day से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Beer is a strict no for uric acid people. Strict no. Uric acid वाले लोगों को, यानी कि gout वाले लोगों को beer बिल्कुल नहीं लेनी है. Liquor मैंने बताया, it will increase, yes. So nuts and legumes ले सकते हैं. Fish should be avoided. Red meat and butter should be avoided. Rest everything आप ले सकते हैं. Go from pyramid from down to top. मतलब diet and exercise सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. Whole grains ले सकते हैं. Vegetables in abundance you can take. Olive oil, canola oil, sunflower oil, safflower oil, peanut oil, any vegetable oil you like, even desi ghee in moderation can be taken. Nuts and legumes I already told. बाकी मैंने सारी बातें आपको बता दी. Coffee लेने से risk कम होता है as compared to tea. Tea would be neutral. Tea में कोई problem नहीं आएगी, but coffee is beneficial. Soft tissue injuries की हम बात कर रहे हैं. Sports related injuries होती हैं. The most common is the golfer's elbow. The elbow joint के पास, this is the medial epicondyle. This gets inflamed. Patient usually complains with pain. Tennis elbow. Sachin Tendulkar had this. These are small things. These are subtle problems. ये rectify हो जाती हैं आराम से. ये यहाँ पे pain. The pain side is this. You cannot lift a bottle. You cannot unscrew or screw something or screw a bottle. ये आपको these are very common soft tissue problems. So the treatment modalities. Treatment हम कैसे करते हैं? Non-pharmacological. मतलब दवाई के बिना. Lifestyle changes. Smoking is strict no for any patient of rheumatoid, osteo, or for that matter any autoimmune disease, gout, whatever the disease might be. Smoking is absolutely not. Smoking should not be done. It's absolutely contraindicated. You can say that way. Alcohol in moderation ले सकते हैं. Physical activity very important. कैसे होनी चाहिए physical activity? It should be regular. आज किया हफ्ते में एक बार नहीं. It should be regular, at least 5 days in a week. Gentle exercises, aerobic exercises, muscle strength. Aerobic का मतलब होता है जैसे आपने walk करी, cross trainer use किया, treadmill use किया. These are all आपने biceps के साथ अपने मतलब dumbbells वगैरह किए. That's all is aerobic. So muscle strengthening exercises, stretching exercises, yoga, pranayam. These are very good. For ankylosing spondylitis, you must do alom vilom and Surya Namaskar stuff. ये सब stretching exercises हैं. They must be done. Diet, I've already touched upon. Diet becomes an important modality. So this has to be taken care of. Now we come to pharmacological. दवाइयाँ. NSAIDs. Any painkillers are known as NSAIDs, except for paracetamol, which does not come under this group. Otherwise, कोई भी painkiller हो, उसको NSAID बोलते हैं. So painkillers are part and parcel, taken according to the prescription. Routine NSAIDs should not be recommended. अगर आपको daily NSAID लेना पड़ रहा है, there is a problem. You must consult your doctor. See, CDMARDs का मतलब होता है disease modifying anti-rheumatic drugs. C का मतलब conventional. So these drugs are 25 to 50 years old. 50 साल से हम इन दवाइयों को दिए जा रहे हैं, which includes Folitrax,
azathioprine, जो आप में से अगर कोई बीमार है तो उसको पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं. मतलब these are certain drugs जिस पे adequate amount of studies हो चुकी हैं. My focus ये बताने का क्या है, these are pretty safe drugs, इनसे डरना नहीं है. Because the most common conception, the most common problem, the most common misconception is this कि ये दवाइयाँ लिवर किडनी खराब कर देती हैं. सी उसके लिए ही आपको कंसल्ट करना होता है डॉक्टर के साथ. These medicines do have certain side effects. Of course, every medicine does, but these are pretty safe medications which can be taken for years together. So, yeah. Now newer drugs have come up. This is known as biological drugs. Biological drugs, now the treatment has actually changed. Rheumatoid जो हम बोलते थे कि incurable word use करते थे, it's not incurable. ना वो पहले था ना वो अब है. But there are certain drugs कि अब इनसे अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं. In the Western world, biologics are the first line drugs. But in India, because we have a resource limited country, neither हम advocate करते हैं ना हम ये कहते हैं कि सबसे पहले दवाइयाँ लीजिए. These are certain expensive medicines, expenses to the tune of say around 6,000 rupees per week के injection से लेके to the tune of 35,000 per injection for 6 months. For around for around 6 months, maybe around 35 to 70,000. So they are so expensive, but these drugs work. These drugs have shown कि आपका disease बिल्कुल remission में डाल देते हैं. So these are wonderful drugs. Steroids are the most important drugs. These are very good drugs. But yes, routine administration means daily लिए जा रहे हैं for 6 months. That is wrong. For a duration of 2 to 3 months कई बार देना पड़ता है. Steroid becomes a very important drug. इसको just because ये steroid है हम नहीं लेंगे, एक wrong concept है दिमाग में. To be taken care तरीके से लिया जाए, it is a very good drug. Now coming to intra-articular injections. This is one of the very important things जिनसे लोग डरते हैं. डरना बिल्कुल नहीं चाहिए. मैम जैसे पहले कह रहे थे कि उनकी नी में इंजेक्शन लगा है. Very good, लगवाना चाहिए. कई बार डिजीज इतना एक्टिव होता है कि एक ही जॉइंट में प्रॉब्लम है. We can settle it out with one injection. एक अगर ये इंजेक्शन हमें रिपीट भी करना पड़े, there is no problem. We can repeat it after 3 to 4 months, not before that. In a year, maybe 3 injections, no problem. Concept problem. अगर इंजेक्शन लगाया आदत पड़ जाएगी, कोई आदत नहीं पड़ती है. It's a wrong concept. नहीं आदत पड़ती है. It's a wonderful thing, must be taken. इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस किस टाइप के हो सकते हैं? या तो स्टेरॉइड लगाया जाता है, कोई बात नहीं. दूसरा इज PRP. PRP is platelet rich plasma. This is a newer thing which has come up in the few last years. PRP is actually very natural and we are doing this in our center. मेरा छोटा भाई जो है, he is a pain specialist, he is a pain therapist. वो ये randomly करता है. For all soft tissue चीजें. We do this. अगर आपके इंजरी है शोल्डर में इंजरी हुई, शोल्डर का मतलब क्या हुआ? शोल्डर जॉइंट में इंजरी है या शोल्डर के लिगामेंट में इंजरी है, शोल्डर के कैप्सूल में इंजरी है. So there can be tear, there can be tendinitis. अगर वो tear है, it has been seen कि 50% to 60% of the injuries, अगर 50% tear भी है, it is totally reversible. You need not do बड़े operations की जरूरत नहीं है. You need not take operations. Injections लगेंगे maybe 2, maybe 3. PRP के therapies के sessions होते हैं. The tear goes off. आपका pain चला जाएगा. It is slightly painful, yes. So in shoulder pain, tears, it is wonderful. Adhesive capsulitis for frozen shoulder, most common cause is diabetes. Diabetes में बंदों के हाथ नहीं हिलते, अकड़ जाते हैं, बिल्कुल हिलते नहीं हैं. You can take these injections absolutely fine. Elbow, tennis elbow, golfer's elbow. These are all sport related injuries. जो आप में से जो भी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, these people can come across these injuries. No problem. These are all curable things. डरना नहीं है किसी से भी से. Knee pain, I told you, जैसे osteoarthritis. Mild to moderate cases में PRP has some role. अगर आप एक्सरसाइज करोगे प्रोबेबली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. एक्सरसाइज के बाद इफ यू नीड यू कैन टेक दीज इंजेक्शंस. सो दीज आर आल्सो गुड. टीयर्स, मेनिस्कल टीयर, कार्टिलेज की प्रॉब्लम्स, एंकल में प्रॉब्लम्स, डायबिटिक अल्सर्स, नॉन हीलिंग अल्सर्स, देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ दिस. सो एक्चुअली व्हाई डू वी नीड टू ट्रीट दिस डिजीज? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू डायग्नोज देम अर्ली. अगर जल्दी पकड़ेंगे तो हम जल्दी उसके चीज से रेक्टिफाई कर सकते हैं. डिफॉर्मिटीज सेट इन नहीं करेंगी. So early thing is to early diagnose and treat. So इसी के लिए you should see a rheumatologist if it is required. आप rheumatology के समझाने का मेरा पर्पस यही था कि इन बीमारियों को constellation को हम बोलते हैं rheumatology. And to understand this is you go to your doctor and you try and find out अगर आपकी ये कुछ problem है, of course they'll see. If you diagnose it early, you can treat it early, you can aggressively treat it. तो आगे आपको deformities नहीं आएंगी. आपको कोई जैसे आपने मैंने हाथ दिखाए उस तरह के हाथों से हम बच सकते हैं. प्रिवेंशन ऑफ अदर सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट. आई टोल्ड यू इट्स अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर. रूमेटोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जॉइंट की प्रॉब्लम है. अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दिस डज नॉट मीन
कि उसको और दिक्कतें नहीं आ सकती। सो और दिक्कतों के लिए भी अगर आपका डिजीज अग्रेसिवली कंट्रोल्ड है, सो आप बाकी चीजों से बचे रहोगे। अगर आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस बढ़ेगा, सो आपको रिस्क बढ़ जाएगा और डिजीजेस का। और डिजीज मतलब क्या? अगर हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है, मतलब अनकंट्रोल्ड में, सो हमें कार्डियक रिस्क बढ़ जाएगा सेफ टू द ट्यून ऑफ 10%। अगर हम ओबीस हैं तो हमारे जैसे डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है 50%। सो यू हैव टू इन्वॉल्व ऑल द सिस्टम्स। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इमोशनल, अब बंदे को आपने ये कह दिया कि सर ये डिजीज तो क्योर होने वाली ही नहीं है, हो गया बस, उसके लिए एक डेथ सेंटेंस आपने दे दिया और उसका काम खत्म। ऐसा नहीं है। सी, डिजीज इज क्योरेबल का क्या मतलब है? एक जुकाम भी क्योरेबल नहीं होता है, डायबिटीज भी क्योरेबल नहीं होती है, हाइपरटेंशन भी क्योरेबल नहीं होती है। द होल पर्पस इज आप लोगों को किसी, फॉर दैट मैटर किसी भी पेशेंट को एक एक्टिव लाइफ जीनी है। इफ ही इज हैविंग, इसको कोई प्रॉब्लम आ गई है अनफॉर्चुनेटली, वी कंट्रोल इट इन सच अ फैशन सो दैट इट डज नॉट डिटोरिएट फर्दर, it does not cause you any other problem, and you can live a healthy normal lifestyle. So that is your quality of life. The whole purpose of us, a rheumatology or rheumatologist, or for that matter your treating physician, would be to maintain this quality of life. Therefore we need to treat these diseases. होता क्या है, पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट जाएगा जी, एक डॉक्टर को दिखाएंगे, चाहे डॉक्टर को समझ में ना आया हो या पेशेंट को समझ में ना आया हो या डायग्नोज ही नहीं हुआ हो, एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे से तीसरा, तीसरे पे किसी ने कह दिया जी आपको तो गठिया है। गठिया का इलाज तो संभव ही नहीं है, ये बीमारी जड़ से कभी नहीं जाएगी। अगर ये नहीं जाएगी तो इट्स गॉन। बंदे ने सब कुछ छोड़ देना है। ही गोज टू maybe a ayurvedic practitioner. Ayurvedic means any local shop doctor. They'll give you some steroid prescriptions, you take for some time, आप ठीक हो गए, maybe छूट गई। This disease goes, it's a very slowly progressive disease. ये धीरे 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 सुलगता रहेगा, and at one stage then it will cause damage, and then we have lost that important window, opportunity window, जो हम आपको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। So please be active and convey this message. So we have to be aggressive in diagnosing these problems. And on a lighter note, if you are hot, then you are cold. You are yes, then you are no. So that is, you are taking prednisolone. Prednisolone is a steroid. So steroid can cause so many things. Thank you so much for your patient listening. Thank you so much. Any other questions are absolutely welcome. Thank you so much, Dr. Gaurav, for enlightening us for this important subject. Whoever wants to speak can unmute themselves. Again, and raise a question. Yeah, please. डॉक्टर साहब, ग्रेट प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे हम लोग मतलब बचपन से ही जैसे ये ऐसे करते हैं तो ये क्रेकिंग ऑफ बोन्स जो होती है, तो मतलब अभी भी जैसे हाथ पैर हिलाते हैं तो वो आवाज आती है, तो मतलब इज दैट समथिंग? क्रैकिंग ऑफ बोन्स इसलिए नहीं होती है, आप ऐसे करते हैं मेरी भी आवाज आएगी। हाँ, क्या होता है, जो जॉइंट स्पेस होता है, जॉइंट स्पेस को जब हम ओब्लिटरेट करते हैं, वहां से एयर निकलती है, वो आवाज करती है। दिस इज नॉट द सेम, नथिंग टू वरी अबाउट। नहीं, बट समटाइम्स इन द नी और हाँ, तो दैट्स नॉट, मैडम नी इज डिफरेंट। मैंने बताया, नी में आप फ्लेक्स करते हैं, नी चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, अगर वो कड़कड़ की आवाज आती है, इट्स एन अर्ली साइन। आप क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए, अगर फिर भी रहता है, कंसल्ट योर डॉक्टर। Okay, doctor, coming back, this is Rupa Sharma again. Yes, ma'am. Yes, So, ma'am. like I'm going for my test every 3 months. That's what my rheumatologist has told. Absolutely correct. So, what I am little apprehensive is like जो सुना हुआ है गठिया है, like you said, death sentence, धीरे धीरे ये हो जाता है. So that is what is the fear lurking in my mind, and it is a irreversible thing. वो चीज थोड़ा डर लगती है, but if you tell me if this is the right treatment and we can prolong it, stop. ठीक चल रहा है. I told you these are DMARDs. Folitrax is a DMARD, disease modifying anti-rheumatic drug. Okay. This is a very good drug. It's the backbone of for rheumatoid arthritis. अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है. If you are tolerating it, it's very good. Secondly, मैम, मैंने आपको बताया, see, aggressive disease management, मतलब disease control, it's very good. अगर आपका डिजीज रेमिशन में चला जाएगा तो आपको आगे ये दिक्कतें नहीं आएंगी। Right. जो आपका इशू है ना मैम, ये मैंने आपको बताया ना, प्लीज आप इस दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। इट्स एन इनक्योरेबल डिजीज। मैंने आपको बताया, डायबिटीज इज आल्सो इनक्योरेबल, इट इज जस्ट कॉमन कोल्ड इज आल्सो इनक्योरेबल, इट इज द वे यू लुक एट इट।
रूमेटॉइड अर्थराइटिस इनक्योरेबल नहीं है मैम. यू हैव टू लिव योर नॉर्मल लाइफ. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपके डिजीज की एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है. यू नीड टू कंसल्ट योर रूमेटोलॉजिस्ट. ही विल सेटल इट आउट एंड यू विल लिव अ नॉर्मल लाइफ एज एनी अदर इंडिविजुअल. प्लीज डू नॉट थिंक कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आप नहीं कर पाओगे. नहीं, यू कैन डू एवरीथिंग. Right, thank you. डॉक्टर डेमला, अर्थराइटिस में जरूरी है कि यूरिक एसिड बढ़े? नहीं सर, मैंने आपको बताया ना सर, अर्थराइटिस 100 टाइप्स का होता है. वन ऑफ देम इज गाउट. गाउट यूरिक एसिड बढ़ने के देयर आर 15-20 कॉज. वन ऑफ देम इज गाउट. ओबेसिटी यानी कि मोटापे में भी यूरिक एसिड बढ़ता है. अगर कोई रीजन नहीं मिल रहा और यूरिक एसिड आपका 8 के ऊपर है, तब हम उसको ट्रीट करने की सोचते हैं और कॉज ढूंढते हैं. अदरवाइज उसको ट्रीट नहीं करना. कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट. और जैसे आपने बोला यूरिक एसिड रोकने के लिए लोग, डॉक्टर कहते हैं दालें नहीं खानी चाहिए, आप कह रहे दालें खानी चाहिए. मैंने आपको यही समझाया. ये एक 25 साल पुराना कॉन्सेप्ट है. गलत कॉन्सेप्ट है. ये रॉन्ग कंसेप्ट. आपको जो प्रोबेबली बता रहे हैं, चाहे वो कोई से भी हो, मैं मानता हूँ मेरी फ्रेटर्निटी में भी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है. सर बिल्कुल खा सकते हैं आप. मैंने आपको बताया रेड मीट नहीं लेना, अल्कोहल इन मॉडरेशन, स्मोकिंग नहीं करनी है, फिश नहीं लेनी है, लेकिन आप खा सकते हैं एनी दाल यू लाइक. Doctor, I have a question. Sir, I did not get your name. Please. Doctor, this is Dr. Prem Maheshwari. My wife is suffering with a meniscus tear grade 1. Yes, Now, I just wanted to ask, is there a proper remedy in terms of medicine or exercise? Or what should we do? sir, meniscal tear है. First of all, I would recommend start good amount of quadriceps exercises. It's only grade 1. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं. Grade 1 जी. tear अपने आप हील कर जाता है सर. आप सबसे पहले quadriceps exercise अच्छे से कोशिश कीजिए, मतलब कराइए. If she is overweight, you need to lose weight. थोड़ा सा डाइट ठीक रखना है. Thirdly, अगर in after all these things, maybe around a month or so, maybe 2 months, अगर वो ठीक नहीं हो रहा, you can go for a PRP injections. Okay. Thanks, doctor. Welcome sir. Thank you. आईफोन से नाम डिस्प्ले हो रहा है, नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा. उन्होंने हाथ भी रेज किया हुआ. प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन. Please, I don't know. Please go ahead. डॉक्टर साहब, संजय शर्मा. Sir. कई बार क्या होता है, रात को सो रहे हैं बेड पे आराम से, कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, और अचानक से पैर में निचली साइड में, टखने और घुटने के बीच में बैक साइड में वो जैसे नसें खिंच जाती है ना, हिंदी में बोलते हैं बाइंटा आ गया. These are cramps. तो वो that is what is that and why, what to do for that? Cramps can have sir multiple etiologies. मैंने कहा ना सर, ये डायबिटीज में भी हो सकता है. 1, क्रैम्प्स में सबसे पहली चीज, एक डायबिटीज नहीं होना चाहिए. अगर डायबिटीज है तो डेफिनेटली नहीं है. डॉक्टर से मिलो. नहीं है जी. Certain vitamin deficiencies can cause this. Okay. Vitamin E deficiency can cause, vitamin D deficiency can cause this. और ये जो बाटे वाली प्रॉब्लम है सर, ये एक थोड़ी सी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आ जाती है. और एसेंशियली तब आती है, कुछ लोगों में ना सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो वो ठंड और जो ये बारिश का मौसम होता है, इसमें क्रैम्प ज्यादा पड़ते हैं. कूलर में ज्यादा पड़ेंगे, एसी में कम पड़ेंगे. So these are quite common, nothing to worry, but vitamin E and vitamin D has some role in this. Perfect. Thank डॉक्टर you. डेमला, कई बार है ना, आदमी वॉकिंग करते करते कई बार लॉकिंग हो जाती है नीज में. व्हाट इज दैट? Meniscal problem है. Consult a doctor, see a doctor. Maybe MRI की जरूरत पड़े, and exercise. Quadriceps exercise the main focus. डॉक्टर साहब, I would like to interrupt. ये एक मैसेज है, वो काफी टाइम से हाथ रेज किया हुआ उन्होंने. Sir, please, कौन है बताइए ना प्लीज. आईफोन से नाम डिस्प्ले हो रहा है. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. सर आईफोन अनम्यूट कर देता हूँ. आई डोंट नो कौन है. अनम्यूट है, यहाँ से अनम्यूट है. उन्होंने हाथ भी रेज किया हुआ है. प्लीज. Dr. Demla, can I talk to you? Yes ma'am, please go ahead. मेरे ना राइट पूरी लेग्स में हिप से लेकर पैर तक ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा ना पेन होता है एकदम से कभी कभी, और हिप से लेकर नीचे पैर तक पूरा पेन होता है, बैठा भी नहीं जाता, इतना पेन होता है. सिर्फ राइट लेग में हो रही है प्रॉब्लम, और 1 month प्लस हो चुका है. सर मैम, ये जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, लुक्स लाइक अ न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम. न्यूरोलॉजिक मतलब नर्व की प्रॉब्लम लगती है. ओके. आपने किसी को दिखाया है मैम? नहीं, मैंने नहीं दिखाया, अभी नहीं दिखाया. मैंने मेडिसिन ली थी डॉक्टर से, बट उससे मुझे रिलीफ मिल गया पेन किलर से, तो उसके बाद मुझे पेन हुआ नहीं स्टार्ट फिर से. मैम, आप सिर्फ बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कीजिए अपनी. यू कैन गूगल इट, बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस,
एट Okay. बैक पे फोकस कीजिए, आप बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो, पेन रिलीफ हो गया, कुछ नहीं करना आपने, कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन केस ये पेन दोबारा होता है या आपकी टांग में यानी कि आपकी लेग में नंबनेस आती है, यानी कि लगता है कि चुभलियां चल रही हैं, तो यू नीड टू कंसल्ट समबडी। Okay, sir. Thank you. सर वो आईफोन का मैसेज आया, आई गेस ही इज नॉट अनम्यूटेड। अनम्यूट कर रहा हूं उनको, पर हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं उनको। आई डोंट नो, वो या तो अपने फोन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर डेमला अर्थराइटिक्स की कुछ एक्सरसाइज बताए। सर अर्थराइटिस में Exercises. और से एक अलग एक्सरसाइज नहीं है कि ये करेंगे तो अर्थराइटिस नहीं होगा। मैंने आपको बताया जेंटल एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस, रेगुलर एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, दीज मस्ट बी डन। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैंने आप योगा में करते हैं, योगा इज ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग, आप योगा कीजिए। नहीं, समटाइम मैं डॉक्टर कहते हैं कि बेड पे बैठ के नीचे फुट के ऊपर कुछ वजन रख के ऊपर नीचे करो, दैट इज आल्सो स्पेशल एक्सरसाइज दैट लाइक इज दैट। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आपको कहा जाता है कि आपके गोडे की एक्सरसाइज में आपकी मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए कहा जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो बाकी जनरल एक्सरसाइज हम बचपन में पीटी करते थे सर, अगर आपको ध्यान हो, हम सबने स्कूलों में पीटी की है। दैट इज द बेस्ट। आप 15 मिनट रोज सुबह उठ के वो पीटी कर लीजिए, आप लोगों को फर्क समझ में आ जाएगा। वो मदर के लिए था एक्चुअली, हम करवाते थे ना, इसलिए बोल रहे हैं सर वो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। Doctor, is this rheumatoid genetic? Like, what are the chances that my kids get? And 5%। देखिए मैम, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है, मैंने आपको बताया एएस नाम की बीमारी है, जिसको हम स्पाइन कमर का गठिया बोलते हैं। दैट हैज अ प्रीडिस्पो, वो जेनेटिक है, उसमें जेनेटिक पोटेंशियल इज मोर देन 60%, बट दिस डज नॉट मीन कि अगर फादर को है तो मतलब सन को होगा ही होगा या डॉटर को होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। बट यस 60% होगा। रूमेटॉइड में मैम 5 to 10% चांस है, अगर पेरेंट्स में किसी को रूमेटॉइड है तो 10% चांस है उनके सिबलिंग्स में ये होने का चांस है। हेलो, हाँ जी गौरव, एंड स्पेशल एक्सरसाइज फॉर नीज कि जो गैप कम ना हो। यस सर, तो सरदाना जी ने बताई है, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसका एक सिंपलर वर्जन मैं बता देता हूँ। जस्ट सिट स्ट्रेट ऑन योर नी, ऑन योर चेयर, एनी चेयर, आपके घर में कोई भी चेयर हो, बैक स्ट्रेट, पुट अ पिलो बिहाइंड, नो प्रॉब्लम, लिफ्ट अप योर लेग हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल सीधा, टू द ट्यून ऑफ 90, उसको होल्ड करना है 1 मिनट, उसको होल्ड करके रखना है 1 मिनट होल्ड कीजिए, कीप दैट लेग डाउन, दूसरी लेग उठाइए 1 मिनट उसको होल्ड कीजिए। सो ऑल्टरनेट लेग 1 मिनट ईच लेग for 20 minutes at a stretch. So this will strengthen our joints. Strengthen your quadriceps. Once the quadriceps are strengthened, knee joint का पेन खत्म हो जाएगा। Any knee pain, नी का कोई मिनिस्कल टीयर हो, लिगामेंट टीयर हो, नी में कोई पेन हो, सदाना जी ने बिल्कुल सही बताया, उनकी मदर को ये प्रोबेबली ऑस्टियो होगा या फॉर दैट मैटर कोई और नी पेन होगा। ये एक्सरसाइज जो उन्होंने करी वो इससे अगला स्टेप है कि आपने अपने एंकल पे वेट बांधा और कराया। तो आप पहले नहीं डॉक्टर साहब मैं इंटरप्ट करूंगा, मदर को ऑपरेशन बताया था, इससे ठीक हो गई थी वो। बिल्कुल सर, मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको यही बोला था कि स्टेज 3 डिजीज तक अगर आप एक्सरसाइज करेंगे आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टेज 4 में सर इतनी डेबिलिटेशन आ गई कि बंदा कहता है कि नहीं यार मेरे से दर्द ही नहीं सहा जा रहा, देन भी से कि आप कराओ, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज इज वंडरफुल। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और भी है, आप बेड के ऊपर उल्टा लेट के पिलो नीचे रख के उस पे दबाएंगे और लेग्स को बाहर निकाल के उसको मतलब जितनी बार कर सकते उतनी बार करो आप, स्ट्रेच करके, और ऊपर पैरों को ऊपर रस्सी बांधनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, वो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल होती है, बहुत सारी होती है। द मोस्ट सिंपलर वन गौरव जी मैंने आपको बता दी है, द सिंपलेस्ट कोई भी अपनी चेयर में बैठ के कर सकता है। मैम आपकी आवाज नहीं आई, क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो सॉरी। जो आपने अभी बताया कि स्ट्रेच इनको हैंग करना है लेग्स को जैसे हवा में, तो 1 leg each time or can we do it together? No, it should be 1 leg each time. Okay, it should be 1 leg. Okay, thank you. बेसी डाल रहे हैं। रूपा शर्मा मैम है, वो आपका नंबर मांग रही है, डॉक्टर गौरव विल शेयर द नंबर। हाँ लिखो सर, बता दूं। Sir, we will write it down. You can speak it out. 94160 94160 43431। And doctor, where do you practice? सोनीपत में मैम, दरियाराम हॉस्पिटल। Okay, okay. सोनीपत डॉक्टर साहब एक बात और बताओ, अथलेटिक्स में ज्यादा चलना चाहिए या कितना चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। कितना चलना चाहिए? रनिंग करनी चाहिए?
देखिए सर, रनिंग मैं बताता हूँ, डिपेंडिंग ऑन डिजीज की सिवियरिटी कितनी है, दैट विल डिटरमिन कि आपको भागना है कि नहीं भागना है। पर आपको अर्थराइटिस है, चाहे ऑस्टियो है, चाहे रूमेटॉइड है, आपको लेवल ग्राउंड पे यानी कि सीधी जमीन पे चलना है। ऊंचाई नीचाई थोड़ी अवॉइड करनी है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, जितनी अवॉइडेबल पॉसिबल हो, लेकिन आपको जरूर चलना है। सर आप बैठ गए तो सारे जॉइंट्स जाम हो जाएंगे। यू मस्ट वर्क। मैंने कहा ना सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही मेंटेन नहीं करी तो फायदा क्या होगा? स्टेट्स यूज करनी चाहिए सर मिनिमम टू मिनिमम। थैंक यू। So the wonderful answers. Anybody else with a question? Yes, doctor. कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी मैम प्लीज। हेलो सर, मैं सरिता सिंगल बोल रही हूँ। हाँ जी मैम प्लीज। मेरे हाथों की उंगलियां ये मुड़ रही हैं डॉक्टर साहब, देखिए आप, ऐसे ना मुड़ गई हैं। हाँ जी मैम, दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ तो कैसे, मतलब इनमें दर्द भी काफी रहता है, स्वेलिंग भी है। एक बार कंसल्ट करना मैम प्लीज, आप एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए मैम। ओके। मेरी एक प्रॉब्लम है सर, कई बार रेपिटेटिव टाइप का काम करते हुए हाथ अकड़ जाता है, कुछ उंगलियां अकड़ जाती हैं, फिर उनको बहुत हिलाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, कई बार अक्सर होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? देयर आर मल्टीपल रीजंस। अगर आपको प्रीमॉर्बिड मतलब यानी कि प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस और हैं, डायबिटीज मोस्ट कॉमन कॉज। डायबिटीज में क्या होता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप डायबिटिक को, मैं वैसे बता रहा हूँ। नहीं वो भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होते हैं तो हमारी बॉडी में वो जो पानी की मात्रा है उसका जो होम्योस्टेसिस है वो गड़बड़ा जाता है। तो जितने भी हमारे टेंडन्स, लिगामेंट्स ये सब होते हैं स्टिफन आउट हो जाते हैं। ओके। उसकी वजह से कि स्टिफनेस का आना, दर्द का होना ये कॉमन होता है। तो इसलिए डायबिटीज इज फर्स्ट थिंग। उसके बाद सर्टेन विटामिन डेफिशिएंसीज और लैक ऑफ एक्सरसाइज और ओवरवेट, दीज आर मोस्ट कॉमन कॉजेज। जो आप बता रहे हैं सर, लाइकली एक विटामिन डी डेफिशिएंसी है, यू मस्ट टेक सम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इसके लिए। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन। हेलो सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, हम रोटरी से रिलेटेड भी है। अब हमें लिक्कर सोडे में लेनी चाहिए या पानी में लेनी चाहिए? लोग कहते हैं सोडे में लेने से हाथ कांपते हैं, इट इज ट्रू? नहीं सर, कोई हाथ नहीं कांपते हैं सर। मैंने आपको बताया सर, स्वीटेड वाटर नहीं लेना चाहिए। इफ यू वांट टू हैव लिक्कर, आपको पानी में लेनी चाहिए सर। पानी में लेना चाहिए? पानी में लेनी चाहिए। सरदार जी ये पूछ लो कौन सी लेनी चाहिए? क्या कह रहे हो? कौन सी लेनी चाहिए ये भी पूछ लो ना। हाँ ये बता दो कौन सी लेनी चाहिए। सरदार जी कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। डॉक्टर साहब बता कौन सी लेनी चाहिए? सर जो आपका दिल करे ले लो। अपनी जेब देख के ले लो, अपनी जेब देख के। सरदाना जी, ये मतलब जैसा अभी इन्होंने डॉक्टर गौरव ने बताया है कि भाई बियर अवॉइड करनी चाहिए कि बिकॉज बियर में सोडा कंटेंट होता है। हाँ। That's why if it can be avoided, please we should avoid. सरदाना जी क्वेश्चन कोई रह गया पूछ लो, ओपीडी कोई चार्जेस नहीं है आज। ऐसा है, पता क्या, मेरी बात सुनो, ओपीडी तो वैसे भी नहीं लेते हैं। तो अब वहां जाओगे ना, रोटेटिंग के लिए वैसे फ्री है। और कर दो कम। आप जाओगे, आपसे पैसे नहीं लेंगे ये। छाबरा जी चिंता मत करो। एक छोटी सी क्वेरी और है सर। डॉक्टर गौरव ने चैट विंडो में एक और क्वेश्चन आया है। अच्छा सर बताइए। I was diagnosed with osteoarthritis. I am not overweight, very fond of walking. Do yoga also? Why it happened and what should be done? मैम डिपेंड करता है। I'm sorry, I don't know iPhone पे कौन है, मैडम और सर, whatever. देखिए आप osteoarthritis है, 2 घंटे आप वॉक करते हैं, you must do the walk, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी osteoarthritis किस का है, मैंने आपको बताया स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी 45 के बाद सबको osteoarthritis हो जाएगा, कोई भी हो, चाहे वो पतला ही क्यों ना हो, पर वो स्टेज 1 है। स्टेज 1 पे कुछ नहीं करना। इफ यू आर ओवरवेट, यस आपका डिजीज बढ़ेगा। स्टेज 1, स्टेज 2 पे यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ। डाइट का ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, कीप योरसेल्फ हेल्दी। योगा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों हुआ मैम, अब कितना स्टेज का है मैंने बताया, इट्स अ डीजेनरेटिव डिजीज, किसी को भी हो सकता है। इवन आई विल हैव इट आफ्टर एज, मेरे को भी होगा 50 साल के बाद, मुझे भी थोड़ा बहुत आएगा, हो सकता है अभी भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। That's great. डॉक्टर गौरव, एक इशू है कि पीआरपी को लेकर कुछ मिसकंसेप्शन है। पीआरपी को लेकर कहते हैं कि साहब वो लगाना नहीं चाहिए, वो सर किस डिजीज में नहीं लगाना चाहिए? जॉइंट पेन्स के ऊपर है, कुछ कहते हैं कि साहब वो। सर मैंने आपको बताया था ना, लोग मेरे पास बहुत मिसकंसेप्शन के साथ आते हैं। मैं आई थी डॉक्टर साहब, साक्षी आई थी आपके पास और वो बड़ा कुछ कम्युनिकेशन लगी हुई, पीआरपी नहीं लगाना चाहिए। नहीं सर, नहीं लगाना चाहिए वाली बात नहीं है सर। अगर डिजीज उतना एक्टिव नहीं है तो लगाएंगे नहीं। सर मैं बताता हूँ पीआरपी में क्या है। अगर आपका डिजीज आपको परेशान ज्यादा कर रहा है, अगर हमारा सर पहला फोकस मैंने बताया सर, हमेशा हर चीज कंजर्वेटिव, फिडल नहीं करना।
अगर एक्सरसाइज डाइट से कुछ फायदा हो रहा है जरूर करेंगे, अगर नहीं हो रहा है देन यस। डिजीज क्या है सर? मेनिस्कल टीयर है, लिगामेंट टीयर है, यस। ऑस्टियोआर्थराइटिस सर बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मैंने बताया माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। अगर प्राइमरी चीज नहीं कर पा रहे करवाइए। स्टॉप वीडियो में आएगा। There's some more questions, chat window में। I think that should be the last. डेफिनेटली मैम स्टेयर्स को अवॉइड करेंगे। देखिए स्टेयर्स। डॉक्टर गौरव एक क्वेरी मेरे ही है, न्यू है सर एक मिनट मैं इसका आंसर दे दूं फिर मैं आपकी क्वेरी लेता हूं। स्टेयर्स डेफिनेटली शुड बी अवॉइडेड, जितना मिनिमम पॉसिबल हो प्लीज उतना यूज करो, ज्यादा मत यूज करो क्योंकि स्ट्रेस और ज्यादा पड़ता है। साइकिलिंग करने से नी पे और ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। आप क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, आप योगा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू मस्ट कैरी ऑन। आपका डिजीज प्रोबेबली यहीं स्टॉप हो जाएगा एंड इट विल रिमेन। सिट ऑन द फ्लोर। मैम क्रॉस लेग नहीं बैठना है, उकड़ू नहीं बैठना है, चौकड़ी लगा के नहीं बैठना, कम से कम जितना हो सके। अगर आप पूजा करने के लिए 15 मिनट बैठते हैं कोई बात नहीं, बट अगर आप कोशिश करके चेयर पे बैठ के पूजा कर सकते हैं माइट एज वेल, वेरी गुड। किचन में काम करते हैं, इफ यू हैव टू स्टैंड फॉर हाफ एन आवर प्लीज आई वुड से कि आप स्टूल बनवाओ, स्टूल पे बैठ के काम करो। Yes, विक्रम निशाद आपका क्वेश्चन था। हाँ जी प्लीज नेक्स्ट। माय प्लेजर मैम। और कौन? एनीबॉडी एल्स प्लीज? Any more questions? डॉक्टर साहब ऐसा को रामबाण बताओ तो अर्थराइटिस हो ही ना। मीटिंग सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह सीता कौन था है? नहीं मीटिंग में से आउट हो जाओ। सब कुछ पढ़ लिया फिर भी रामबाण होता है। मेरी बात डॉक्टर साहब कहते रहे सबको होगा यार, सबको होगा, उनको भी होगा, सबको होगा। नहीं होगा, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बात नहीं है, बचाव किया जा सकता है। ठीक बात है, पूछ लो। राजकुमार जी हमें भी पूछने दो कुछ। पूछ लो, हम आपको मना थोड़ा कर रहे हैं सर। अच्छा डॉक्टर गौरव एक छोटी सी क्वेरी है। काफी देर जब बैठे रहते हैं, जैसे आप बैठ रहे हैं 1-1.5 घंटा जूम पे आजकल लग जाता है, टेल बोन में पेन होने लग जाता है। एनीथिंग पर्टिकुलर इन दैट, वुड यू लाइक टू कमेंट? आपका पोस्चर, आपका जो चेयर है, एक तो चेयर पे जो कुशन होता है बॉटम पे वो अच्छा होना चाहिए सर। अगर वो नहीं है तो प्लीज मतलब जितना ऑफ कोर्स अच्छा होगा, बट आई वुड से कि उसको और थोड़ा सा रीइंफोर्स करिए। टेल बोन में एक्चुअली बेसिकली क्या है, टेल बोन पे जहाँ पेन होता है ना वहाँ पे जो स्किन होती है थोड़ी पतली होती है। परसिस्टेंट प्रेशर के बाद, परसिस्टेंट सिटिंग के बाद उसमें और जो नीचे हमारा जो भी कुशन है थोड़ा सा फ्रिक्शन डेवलप होकर वहाँ थोड़ा सा इडीमा आ जाता है, पेन करती है। तो जिसको एक टेंडेंसी होगी सर पेन बढ़ जाएगा। तो हमारा काम है उसमें ना डोनेट शेप फिल, उसमें आपकी टेल बोन नीचे टच नहीं करेगी। ओके, आपको कुशन मिलेगा, आपकी बटक कुशन रखना चाहिए, कुशन रखना है, लेकिन वो भी डोनट शेप्ड, बीच में से खाली जैसे टायर की ट्यूब होती है। ठीक है, तो आपकी टेल डोनट शेप का, आपको पेन रिलीफ होगा। अच्छा एक और आफ्टर 50 do you recommend rigorous jogging, running or just brisk walking? Mild jogging is allowed. Sorry, disturbance आ रही है, समझ नहीं पाया मैं। Let me see Sir, on Sir, brisk walk should be done. उसके साथ अगर लाइट जॉगिंग करना चाहें करनी चाहिए। अगर आप रनिंग नहीं करनी चाहिए, रनिंग ऑन हार्ड सर्फेस क्या सर, सडनली 50 साल की उम्र में शुरू करोगे रनिंग तो प्रॉब्लम है। फॉर से अराउंड लास्ट 10 years you must do it. Perfect, thank you so much. जग्गू पाजी मैं आपको बता दूं, रामबाण मेरी बात सुनो, डॉक्टर साहब यदि मेरी बात को फेवर करेंगे, सुबह सबसे पहले आप सभी लोग 5 फ्रूट खाया करो, बड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में, उसके बाद अपना जो डाइट रखना 5 फ्रूट स्टार्टिंग में खानी चाहिए ब्रेकफास्ट में। डॉक्टर साहब आई एम राइट? सर हेल्दी बता दो, मर्जी खिलाइए। हाँ जी, हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं एक ही बात बोलता हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट, एक्सरसाइज। राणा जी फ्रूट दे नाम दस दियो, कोई भी एनी कलर, एनी 5 अंगूर, एनी 5 फ्रूट, 5 केले नहीं केले नहीं, केले आफ्टरनून
चलिए आफ्टरनून में any 5 fruit, any let's I'm taking a pause. सर बाकी मर्जी, आप खाओ ना खाओ, आपकी मर्जी है कि आपको रामबाण बता दी है। राजीव जी, गुलशन है। राजीव जी, एक डॉक्टर साहब से पूछना था। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब, एक तो नेक में काफी पेन रहता है नेक में। मैंने जो सोने के बाद भी काफी देर तक रहता है, मतलब पूरा होल डे। व्हाट इज द रीजन यार? सर देखिए, ये पोस्चरल रिलेटेड भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, और देयर में भी सर्जन अदर थिंग्स। आपको एक बात, हाँ, देखिए बहुत वेग चीज है, मैं फ्रैंकली बताऊं आपको, मैं ये फोकस करके नहीं बता सकता इस क्वेश्चन का आंसर कि आपके नेक में पेन क्यों है। सर एसेंशियली नेक पेन जितने भी होते हैं, इट इज बिकॉज़ ऑफ इसके लिए एक्सरसाइजेस जो नॉर्मल हम करते हैं, लेफ्ट राइट पूरा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वो तो करता ही हूँ मैं, तब भी रहता है। स्पाज़म में रहेगी तो वो पेन करेगी थोड़े दिन। अगर वो मसल रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा, एंड देन भी आप थोड़ा सा हल्का सा हल्के हाथ से थोड़ा तेल से मालिश करके देख लीजिए, अगर सेटल कर जाए ठीक, नहीं तो सर एक बार 12 बजे मिल जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, डेफिनेटली। मैं एक्चुअली थैंक यू। ऑलराइट जी, कोई और किसी को सवाल तब तक सोचना है तो वो सोच सकते हैं। और मीनवाइल मैं जैसे कि आज अनाउंस किया था कि 2 लकी ड्रॉ मिलेंगे, तो अमेजन पे वाउचर का आज का अवार्ड है, 800 रुपए का पे वाउचर मिलेगा, विच इज इक्वल टू 8% ऑफ योर ड्यूज। कौन निकाल देता हूं तब तक। लेट्स सी हु इज द लकी वन। हियर वी गो, लेट्स सी। Now everybody can see the speed. Wheel दिख रहा है सबको? हाँ जी, दिख गया, व्हील दिख गया सर। व्हील दिख गया जी? Alright, so let's start up. मैंने उन सभी लोगों के नाम डाल दिए जो आज मीटिंग में लॉगिन जिन्होंने किया था। Let's see who's the lucky one. Point is कि वो उसको इस समय ऑन होना चाहिए। अगर इस समय जूम पे नहीं है तो he'll not get the prize. So lucky, here goes the wheel. And with the question, the first award goes to Gulshan Sehgal. Gulshan Sehgal जी, आप लॉगिन हैं? बोगी हो गई, बोगी। मैं हूँ, लॉगिन में हूँ सर। आप अपनी फोटो दिखाएं। गर्दन में दर्द है। मेरी फोटो मैं अभी ला लेता हूँ सर, जस्ट होल्ड डाउन। लॉगिन है। बोगी गैलेक्सी 8 Note 8 yes alright। तो पहला आज जो अमेज़न पे वाउचर जाता है गुलशन सहगल जी को। थैंक यू सो मच राजीव जी। गर्दन का इलाज करा लेना। आप गर्दन का इलाज हो गया अजय भाई। Now let's go for the second lucky draw. I'm again spinning it. Let's see. And here we have Sumit Alak. Sumit Alak है इस समय? नहीं, बोगी। हाँ जी सर, हाँ जी। आया सुमित अलग जी? How are you? आवाज नहीं आ रही आपकी? निकाल देना सामान कितने आ गई। फोटो दिखाओ, फोटो दिखा तो दिया यार। दिखाओ फोटो, तब से नजर ही नहीं आया। ये रहा। एक सेकंड होल्ड करो ठीक है ना? 98% रह गए अब। 98% रह गए। चलिए ठीक है, लेट्स स्टॉप शेयर कहाँ से होएगा? लेट्स ठीक। गौरव जी मजा आ गया आज। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मतलब आपको हर साल एक बार तो लेक्चर एक कंफर्म है कि आप देना चाहिए आपको अपडेशन। मजा आ गया, वेरी नाइस, रियली अप्रिशिएट। और आपको इम्प्लीमेंट भी करना जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब। कहाँ एंटर नहीं करना? Dr. Gaurav, many congratulations for Preeti's birthday. Thank you, ma'am. Thank you. Wow. Yeah. Very good meeting, Dr. साहब। Congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. सुमित हाँ जी, दिन ठीक है तेरा आज? हाँ जी, ठीक है ना? गौरव जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिटेल्ड टॉक। और आपने बहुत क्वेश्चंस के आंसर दिए। मुझे उम्मीद है कि सबको कुछ जवाब मिल गए होंगे, कुछ डाउट्स दूर हो गए होंगे।
और उसके बाद भी अगर किसी को कोई सवाल है तो आप डॉक्टर गौरव को दलेराम हॉस्पिटल में जाके इनके मिल सकते हैं, इनसे सलाह ले सकते हैं। मैंने बोर नहीं किया। हाँ, आई होप मैंने बोर नहीं किया। No, you have done a fantastic job. बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। एक्सीलेंट। और आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, किसी हमारे मित्र को मीटिंग रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो वो हमसे बाद में ले सकते हैं कि we will provide